Hello viewers and welcome back to Doordarshan Kendra Itanagar. This is Techi Kokololo, your host, and on the completion of 100 episode of Mann Ki Baat, we bring you the special episode that is called 100 episode of Mann Ki Baat, a look back, where we will try to discuss or try to outlook or give a summarization or have a healthy discussion over the 100th episode of Mann Ki Baat. And to do that, I have with me in the panelist Mr. Y.D. Tongchi, writer, former deputy commissioner, and also recipient of India's prestigious award Padma Shri. And the second panelist I have with me is Priya Vanshu Ranjan, head of PIB Itanagar. So first of all, welcome to the studio, sir. Thank you. So the first question that I would like to ask is that when you heard that 100 episode has been completed, so what was your opinion? What was your first reaction when you heard that? 99 episodes have already been completed. That is a great achievement on the part of our beloved and most loved Prime Minister Narendra Modi ji. It is indeed one of the greatest show in Doordarshan as well as in the All India Radio, where every people of India is connected through the through Narendra Modi speaking to everybody else, to the whole countrymen. And sir? मन की बात जब प्रधानमंत्री ने शुरू की थी तो उनका कहना था कि मन की बात इसलिए शुरू किया गया है ताकि वो जन जन से जुड़ें। देश के जन जन से जुड़ने का मतलब है कि जो हमारे समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उनसे जोड़ने की एक कोशिश थी ये मन की बात, और अपनी इस कोशिश में बिल्कुल कामयाब रही है, बहुत सफल रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी कभी मन की बात करते हैं तो कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को सामने लाते हैं, अनजाने किस्सों को सामने लाते हैं जिनके बारे में हमारे समाज का बड़ा तबका नहीं जान रहा होता है, और उससे फिर समाज को एक नई दिशा मिलती है, समाज को एक नई प्रेरणा मिलती है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मन की बात जो शुरू हुआ था, जो जितना भी उनका जो एपिसोड चला है, उसमें पर्टिकुलर अगर हम अरुणाचल की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि अरुणाचल में उसका प्रभाव कैसे पड़ा है? अरुणाचल में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने अरुणाचल का कुछ ऐसे एपिसोड्स दिखाया जो कि बहुत ही अनूठा था, जैसे कि कोविड के समय में लाइब्रेरी डेवलपमेंट, या यहाँ जो नया 4G टावर लगाया गया है, कुछ ऐसे चीज़ों के ऊपर में उन्होंने फोकस किया है। साथ साथ में बीच बीच में दूसरा सब्जेक्ट्स के ऊपर में भी फोकस करते रहा, जैसे हम लोगों का नेशनल सिक्योरिटीज़ के ऊपर में, हम लोगों का खेती बाड़ी, अरुणाचल के खेती बाड़ी फल मूल के ऊपर में भी उन्होंने फोकस किया है। तो ये अरुणाचल के लिए बहुत प्रेरणादायक रहा, very encouraging and inspiring for the people of Arunachal Pradesh. Sir, can you elaborate on that COVID वाला जो आप बता रहे थे? During COVID time, in Arunachal Pradesh we have got a system. Whenever there is an epidemic, people are not allowed to come inside the area. That is one type of quarantine which was practiced traditionally from time immemorial, and that practice was shown through one of the episode where people of Miram village, they constructed a house outside their village, and where outside people are not allowed to enter in the village, but they are allowed to stay there, where people have provided them food and lodging. And that way they have kept away the
disease out of their flesh. At the same time, it had shown that how this example can be emulated by the people of other places. So Ranjan Not sir, only in India, but whole world can emulate those our traditional system of the quarantine, which Miram place has shown through their action. okay. So Ranjan sir, do you have like anything to add on? Like, आपको क्या लगता है कि अरुणाचल में इसका क्या प्रभाव पड़ा है? जी, अरुणाचल में इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा है। देखिए, जब भी पिछले 9 सालों में कम से कम 5 बार प्रधानमंत्री मोदी ने पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी इनिशिएटिव्स का जिक्र किया है मन की बात में। एक तो मेरम विलेज के बारे में बताया सर ने। दूसरा जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है वो तवांग में एक एंशिएंट पेपर है मोनशुगु पेपर। उस पेपर मेकिंग की कला के बारे में प्रधानमंत्री ने बताया था जनवरी 2021 में जो मन की बात हुई थी, उसमें पीएम ने उसकी चर्चा की थी। मोनशुगु पेपर मेकिंग की खास बात यह है कि इसमें जो एनवायरनमेंट है उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, पेड़ को नहीं काटते हैं, लेकिन फिर भी वो पेपर तैयार होता है। किसी तरह का केमिकल उसमें इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें जो इस पेपर मेकिंग से जुड़े हुए हैं मलिंग गोम्बू, उनका भी जिक्र किया था पीएम ने कि किस तरह से वो इस ट्रेडिशनल आर्ट को बचाने में लगे हुए हैं। ये जो मोनशुगु है, मोनशुगु को बाद में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी प्रमोट किया। वो मन की बात का ही इम्पैक्ट था कि बाद में उसको बड़े पैमाने पर नेशनल लेवल पे प्रमोट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो कुछ लोगों ने इस मन की बात को लेकर भी बहुत क्रिटिसाइज किया है कि ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है ऐसा करके। सो उस पे आपका क्या ओपिनियन है? हम शुरू करेंगे तोमची सर से। मैंने जितना मन की बात मैं तो टीवी में देखता हूँ हर रोज़, तो मैंने जितना भी एपिसोड्स देखा है कहीं भी मैंने उधर में कुछ पॉलिटिकल हिंट्स कुछ नहीं मिला। जैसे उनका नरेंद्र मोदी जी का जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं दूसरा जगह में, वो पॉलिटिकली कुछ ना कुछ उसमें हिंट्स रहते हैं, मगर मन के बात जो है वो बहुत ही अलग, जहाँ पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल उन्होंने कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ हिंट्स नहीं देते हैं। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये तो आदमी के साथ आदमी को जुड़ने के लिए देश में क्या प्रगति हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्या इंस्पायरिंग स्टोरीज है, कौन आदमी क्या काम कर रहा है, एक छोटा आदमी से लेके बड़ा आदमी तो क्या काम कर रहा है, ये सब दिखाने के लिए है। तो यहाँ तो मैंने कभी कुछ पॉलिटिकली कुछ मोटिवेटेड स्पीच कभी नहीं सुना है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि ये पॉलिटिकली वो मोटिवेटेड मन की बात है। जी बिल्कुल सही कहा थोंची सर ने। वैसे भी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब कभी हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो जो क्रिटिक्स हैं वो क्रिटिसाइज़ करते ही हैं, हम उनको नहीं रोक सकते। लेकिन आप देखिए, हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, जो अरुणाचल के लोग जिससे कनेक्ट करें मैं वही बात करूँगा। अगर पीएम ने कहा कि यहाँ एयर गन सरेंडर अभियान बहुत सफल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में 500 से ज़्यादा प्रजातियां हैं चिड़ियों की, पक्षियों की। लेकिन जब मैं 2.5 साल पहले यहाँ ईटानगर आया था तो जहाँ हमारे रेजिडेंस है वहाँ मैं चिड़ियों को कभी देखता नहीं था, कभी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। लेकिन जब सरकार ने एयर गन सरेंडर अभियान शुरू किया, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज आप हमारी कॉलोनी में जाइए, वहाँ आपको चिड़ियों की आवाज़ जो है वो बहुत आसानी से सुनाई देगी। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पीएम ने उसका जिक्र किया, तो इसमें पॉलिटिक्स कहाँ है? जब कोविड पीक पे था तब पीएम ने मिरम विलेज में क्वारंटीन फैसिलिटी का जिक्र किया था कि कैसे एक ट्रेडिशनल परंपरा को फॉलो करते हुए वहाँ क्वारंटीन फैसिलिटी गांव वालों ने बनाई है और किसी तरह का स्टिग्मा भी फेस नहीं करना पड़ रहा उस क्वारंटीन फैसिलिटी में रहने वाले विलेजर्स को। उसमें पॉलिटिक्स कहाँ है? मोनशुगु पेपर का जिक्र किया पीएम ने, उस पेपर मेकिंग के आर्ट को प्रमोट किया गया नेशनल लेवल पे, उसमें पॉलिटिक्स कहाँ है? उसमें कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट पार्टीज किसी का जिक्र नहीं है।
तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का एक टूल है। और आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि जो मन की बात जो चला है ये इतना एपिसोड, उसमें ऐसा कुछ चेंजेस सोसाइटी में इस एपिसोड के थ्रू से आपको पर्सनली देखने को मिला जो आप शेयर करना चाहते हैं? तोमची सर। वैसे आर्मी लोग इससे बहुत बड़ा प्रभावित हुआ है, जैसे कि जल संरक्षण जो है, पानी को कैसे बचाना है। तो ये जो एपिसोड प्रधानमंत्री जी ने जो दिखाया है कैसे पानी को संरक्षण करना है, उसके बाद गांव-गांव में पानी जो संरक्षण करना है, हमें जल को जो संरक्षण करना है, उसके ऊपर में काफ़ी अवेयरनेस आया हुआ। मैंने अपना आँखों से आर्मी लोगों के साथ बातचीत करके ये सब देखा है। उसके ऊपर में फिर ये क्या बोलते हैं, कोविड के समय में तो उनका इम्पैक्ट पड़ा ही है। प्राइम मिनिस्टर ने जब बोला कि आप ये जो आपका ये खुराक लेना चाहिए, बहुत लोग डर रहा था कि ये जो कोविड वैक्सीनेशन लेने से बहुत लोग डरता था। हम लोगों का भी कुछ लोग था जो अपना रिलेटिव है, उन लोगों का भी बहुत डर लग रहा था। जब प्राइम मिनिस्टर ने बोला तो उन लोगों ने बोला हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है और भी हमको लगाना पड़ेगा। ये सब जो इम्पैक्ट पड़ा है, ये तो सचमुच डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आँखों से दिखाई दिया। तो ऐसे करके उन्होंने देशवासियों को ये कोविड वैक्सीन लेने के लिए इंस्पायर किया है। कोविड के ये जो वैक्सीन के ऊपर में आर्मी लोगों का जो गलत फहमी था, उसको दूर करने में उन्होंने बहुत बड़ा भूमिका लिया है। बिल्कुल, मैं सर से बिल्कुल सहमत हूँ कि इसका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। आप देखिए, जब मन की बात में पीएम ने स्ट्रीट लाइब्रेरी मूवमेंट का जिक्र किया, जो पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में गोरांग मीना लीड कर रही हैं। स्ट्रीट लाइब्रेरी मूवमेंट का जिक्र करने से ये हुआ कि जो यूथ को पता चला कि हमारे बीच एक ऐसी इनिशिएटिव है जिससे कि हम फ्री में जाके किसी चौक चौराहे पे बैठ के अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। तो जिस अरुणाचल में ड्रग्स की तरफ जो नौजवान हैं वो बढ़ रहे हैं, वहाँ पे ये एक अच्छी इनिशिएटिव है। दूसरा, आप देखिए जो सर ने बताया कोविड के टाइम का, मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि असम में यादव पायेंग हैं। यादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पीएम ने उनका जिक्र किया कि वो किस तरह पैशन के साथ पेड़ लगाने का काम करते हैं। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अभी कुछ दिनों पहले पासीघाट में उनको इनवाइट किया गया था और बड़े पैमाने पे उन्होंने पासीघाट में भी पेड़ लगाए और बाकी लोगों ने भी उसमें हिस्सा लेके पेड़ लगाया। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आया है मन की बात बिल्कुल, की तरफ से। तो अगर हम अभी देखें कि आपको क्या लगता है कि ये जो मन की बात अभी 100 एपिसोड कंप्लीट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इसको और प्रमोट करना चाहिए और आगे इसको रिसोर्सेस इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए? आपका क्या विचार है उसमें? मेरा विचार है कि बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इससे हम बहुत सारे अनछुए किस्सों से रूबरू होते हैं, उसके वाकिफ़ होते हैं। तो इसे ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। और मैं इसमें एक और बात ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो मन की बात है, उसके कारण हमारा रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, काफ़ी ज़्यादा उसको प्रमोट किया गया है। एक ज़माना था जब लोगों ने रेडियो सेट सुनना एक तरह से बंद कर दिया था, लेकिन मन की बात के कारण लोग आज भी रेडियो सेट सुनते हैं। मैं पिछले साल वेस्ट कामेंग गया था। वेस्ट कामेंग में 10,000 फुट की ऊंचाई पे एक गांव है लुब्रांग, जहां ब्रोकपा जनजाति के लोग रहते हैं। मैंने वहां देखा कि लोग रेडियो पे मन की बात सुन रहे हैं। तो आप इमेजिन नहीं कर सकती हैं कि भारत के सुदूर पूर्वोत्तर में एक बहुत ऊंचाई पे स्थित एक गांव है, वहां पर लोग रेडियो पे मन की बात सुन रहे हैं। तो रेडियो को एक नया जीवन दिया है मन की बात ने।
तो तोंगची सर, आपको क्या लगता है? मैं तो कहता हूँ कि ये कंटिन्यू करना चाहिए। अगर इसको डिसकंटिन्यू किया जाए 100 एपिसोड के बाद, तो हम लोग ऐसे लगेगा कि कुछ खो दिया है। ऐसे खाली हम ही नहीं, हमारा भी आदत पड़ गया कि मन का लास्ट संडे आने से मन की बात सुनना चाहिए। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या कहेंगे, किस सब्जेक्ट के ऊपर में कहेंगे, किस किस के साथ बात करेंगे, ये सब जानने को इच्छुक रहते हैं। और जैसे लोग सीरियल एक देखने के बाद छोड़ नहीं सकता है, ठीक इसी तरह मन की बात भी लास्ट संडे आने से ऐसे लगता है कि आज कुछ कहीं भी नहीं जाऊं, वो मन की बात सुनूं। और जब दिन में सुनने को कभी कभी छूट जाता है, तो मैं आके शाम को ये क्या बोलता है, यूट्यूब में वो कंप्यूटर में देख लेता हूँ। और मुझे उससे बहुत इंस्पायरेशन मिलता है, देश के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलते हैं। ऐसे लगता है कि मन के बात के जरिए मैं भी उन लोगों के साथ, अपना देशवासियों के साथ जुड़ गया हूँ। कोई उत्सव मना रहा है, प्राइम मिनिस्टर रोज एपिसोड में आज क्या पर्व है, कहाँ ये मना रहा है, ये सब से शुरू होते हैं। मेनली ज़्यादातर ऐसे करके शुरू होते हैं। तो हमको भी लगता है कि उस उत्सव में मैं भी योगदान कर रहा हूँ। तो एक ऐसे माहौल उसके जरिए क्रिएट करते हैं कि अपना आप को भारत का वासी होने का गर्व महसूस होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये जो एपिसोड है उसको अगर कंटिन्यू नहीं करेगा तो देशवासी बहुत कुछ खो गया जैसे लगेगा। तो मैं खटकेगा कि संडे लास्ट संडे आ रहा है, आज मन के बात नहीं है, ये सब बातें दुख लगेगा लोगों को। तो सर, जैसा आपने अपना जो फीलिंग्स है वो इतनी अच्छी तरीके से आपने एक्सप्रेस किया, तो उसी के साथ मैं एक प्रश्न ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि आप जैसे देखते हैं मन की बात, तो ऐसा कुछ मेमोरेबल वाला एपिसोड जो आपको याद है, जो आपने देखा और ऐसा फील किया कि एक मेमोरी रह जाता है ना एक एपिसोड का, ऐसा कुछ है तो आप शेयर कर सकते हैं। अभी कौन सा एपिसोड का बात बोलो, सब एपिसोड तो इतना बढ़िया है कि एक से बढ़कर एक होता है। तो किसी एक एपिसोड ही बहुत अच्छा हुआ ये बात बोल नहीं सकता है। सब एपिसोड ही अपना अपना में एक वो इम्पोर्टेंस है, अपना अपना में एक महत्व है, और सबके सब बराबर ही है जैसे लगता है हमको तो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक एपिसोड में कम से कम 5-10 किस्से होते हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स के, अलग अलग लोगों द्वारा जो किए जा रहे प्रयास हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति का प्रयास किसी दूसरे व्यक्ति से कमतर है। हर व्यक्ति का प्रयास, हर व्यक्ति की, जैसे गुरांग मीना को हम मलिंग गोमो से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का अपना अपना अलग इनिशिएटिव है। स्ट्रीट लाइब्रेरी मूवमेंट भी हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, मोन शुगु पेपर मेकिंग भी, और उस आर्ट को बचाए रखना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से हर कहानी अपने आप में बहुत अनोखी है। और आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगी कि जो मन की बात जो एपिसोड रहा है, ये जो इनिशिएटिव है, क्या ये इनिशिएटिव जो हमारे जो लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन सेक्शन और इन सब जो डिपार्टमेंट है, इन सब सेक्शन में जो कुछ इसमें कुछ बदलाव ला पाया है लाइक थ्रू दिस मन की बात? ये तो अभी हम अच्छा से बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उस फील्ड में हम जुड़ा हुआ नहीं है। जब आंखों से दिखेगा कि कुछ हुआ है, ज़रूर कुछ हुआ है, हुआ होगा, तो ये अभी मैं बता नहीं पाऊँगा कि असली में कितना इम्पैक्ट हुआ है, कुछ बदलाव लाया है कि नहीं। बदलाव ज़रूर लाया होगा, ज़रूर। उसमें जब आदमी इंस्पायर होता है तो आदमी बदलाव जरूर लेके आता है, जरूर हुआ होगा। ये सटीक रूप से बोल नहीं पाऊँ।
आपने कहा कि वेमेन एम्पावरमेंट, तो मेरे हिसाब से जब कभी किसी भी वुमन के अच्छे प्रयासों के बारे में हम जिक्र करते हैं तो बाकी जो महिलाएं हैं उनको भी खुशी होती है और उन्हें भी प्रेरणा मिलती है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री ने कई बार, एक बार दो बार नहीं, कई बार अपने मन की बात में महिलाओं के प्रयासों के बारे में बहुत प्रमुखता से बात की है, बहुत व्यापक तरीके से बात की है। तो मेरा निश्चित तौर पर मानना है कि इससे महिला सशक्तिकरण को, विमेन एम्पावरमेंट को काफ़ी बढ़ावा मिला है। एंड जब हम बात करते हैं मन की बात की, तो उसमें आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्शन पर ज़्यादा हमारे पीएम सर ने प्रकाश डाला है, लाइक कहाँ पे, कौन से सेक्शन पे ज़्यादा उसने इम्पोर्टेंस डाला है? देखिए, इस मन की बात में किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जोर नहीं डाला गया है, यहाँ इनिशिएटिव्स पे जोर डाला गया है कि आपके सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है और उससे समाज का बहुत ज़्यादा भला हो रहा है या हो सकता है, तो प्रधानमंत्री ऐसे किस्सों को मन की बात में शामिल करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इससे महिलाओं पे ज़्यादा फोकस डाल रहे हैं या बच्चों पे डाल रहे हैं या बुजुर्गों पे डाल रहे हैं, मतलब प्लान्ड वे में ये नहीं होता है। उनके पास बहुत सारी कहानियाँ पहुँचती हैं समाज के बारे में, पॉजिटिव कहानियाँ, वहाँ से वो पिक करते हैं और जो उन्हें लगता है कि हाँ, इस कहानी को यहाँ मेंशन करने से देश का भला होगा, समाज को एक नई दिशा मिलेगी, तो वो उस कहानी को पर्टिकुलर एपिसोड में शामिल करते हैं। और रिसेंटली जस्ट हम शूट करने से पहले सर से हम बात कर रहे थे, रंजन सर से, सो आप मेंशन कर रहे थे बहुत सारे कहानियाँ जो अरुणाचल से गए हैं जी, और पीएम मोदी के थ्रू से वो सुनाए गए हैं लोगों को। सो अगर कुछ छूट गया है तो आई वुड रिक्वेस्ट रंजन सर टू, हाँ, जैसे हमने एक रिकेप हो जाए। स्ट्रीट लाइब्रेरी की बात की है, हमने एयरगन सरेंडर अभियान के बारे में बात की, हमने मोहन शुगु पेपर मेकिंग के बारे में बात की, मिरम विलेज की एक अलग तरह की क्वारंटीन फैसिलिटी की बात की। इसी तरह भी अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री ने सियांग ज़िले के जोरसिंग गांव का जिक्र किया था। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुना होगा कि 254 4G मोबाइल टावर वो डेडिकेट किया गया नेशन को। वो 254 मोबाइल टावर अरुणाचल में ही लगे हैं। जब वो प्रोग्राम हो रहा था तो उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन साहब ने कहा कि जब कभी हम लोग रिमोट एरियाज़ में जाते हैं तो लोग रोड बनने से खुश नहीं होते हैं ज़्यादा, स्कूल बनने से ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि 4G टावर लग रहा है और अब वो मोबाइल से कनेक्ट हो पाएंगे तो वहाँ ज़ोरदार तालियां बजती है, वो लोग बहुत खुश होते हैं। तो पीएम ने अपने मन की बात में इसी पहलू को सामने रखा था कि जोरसिंग गांव में जो 4G टावर लगा है उससे वहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं और एक बॉर्डर एरिया होने के नाते, एक रिमोट एरिया होने के नाते जो कनेक्टिविटी के इश्यूज़ फेस करने होते थे वो अब नहीं होंगे। जैसे मैंने 2 दिन पहले ही वहाँ के गांव बूढ़ा से बात की, जोरसिंग गांव के गांव बूढ़ा से बात की। मुझे लगता है अगर वो 4G टावर नहीं लगा होता तो फ़ोन पे मैं बात नहीं कर पाता उनसे। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है। ओके, तो ये मैं पूछना चाहूँगी कि आगे अगर मन की बात फिर होता है तो और क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और क्या सजेशन आपके तरफ से, अगर हमारे एपिसोड को अगर हमारे पीएम सर सुन रहे हैं तो क्या एडवाइस रहेगा आगे के एपिसोड के लिए? ये क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या हो सकता है, ये हम लोग बोल नहीं सकता। ये प्रधानमंत्री जी का मन की बात है। जब उनका मन का बात बोल रहा है तो उसका मन में जो आता है इम्प्रूवमेंट का हम देखा है, इससे और बढ़कर इम्प्रूवमेंट करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहा है कि और आगे इम्प्रूवमेंट करने का कोई रास्ता नहीं है। वो जो उनका सामने में जो समस्या आ रहा है, इनके साथ में जो आदमी लोग जुड़ रहा है, जो कहानियाँ जुड़ रहा है, उसको वो देश के सामने में रख रहा है और देशवासियों को उसको इमुलेट करने के लिए, उसको उससे इंस्पायर होने के लिए बोल रहा है। तो और लोगों से फ़ोन पर बातें भी कर रहा है। तो क्या होता है कि लोग
अपना आप को देश के साथ जुड़ा हुआ, प्राइम मिनिस्टर के साथ जुड़ा हुआ, गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ लगता है। तो इससे और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हमको तो कुछ सुझाव देने के लिए कुछ नहीं है। तो इतना अच्छा प्रोग्राम है और प्राइम मिनिस्टर जो चाहेगा ठीक उसी तरह इम्प्रूवमेंट करके लेके जाएगा। रंजन सर। जी बिल्कुल सर से मैं सहमत हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात। ये मन की बात तो प्रधानमंत्री के मन की बात है, तो ये प्रधानमंत्री ही तय करेंगे कि उन्हें अपनी मन की बात को किस दिशा में ले जाना है, कहाँ तक ले जाना है। तो यह बेहतर होगा कि हम ये प्रधानमंत्री पर ही छोड़ें। ओके, तो आज हमने भी अपनी मन की बात कर दी इस एपिसोड में। आई होप ये एपिसोड बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही मन की बात वाली एपिसोड होगी। एंड अभी हम प्रोग्राम के एंड पार्ट में पहुंच चुके हैं एंड इट्स अ रैप एंड दिस वाज 100 एपिसोड ऑफ मन की बात, ए लुक बैक। आई होप you all had an amazing time listening to us. This is Techi Kokololo signing off. देखते रहिए दूरदर्शन ईटानगर। Bye bye.